बैठ के नहीं लेने वाला ना। Hi everyone. So let's start this DLR sectional one attempt. Basically, this is available on our website and I'm attempting this. So I will be able to do this on this screen only, and I'm sure you are able to see this screen, and this is something which I will use for my working, right? So that you can see how I approach the set. Generally, I'm not much comfortable doing the live attempts on screen because I believe that it reduces my efficiency and अगर मैं यहाँ पे शो नहीं करूंगा तो शायद आपको फिर उतना इनपुट नहीं मिल पाएगा, सो दोनों ही चीजें। तो आई थॉट ऑफ कि लेट्स ट्राई इट आउट दिस वे एंड सी वेयर इट गोस। प्लस आई एम नॉट इन अ गुड एनवायरनमेंट, राइट? सो थोड़ी सी नॉइसेज आ रही है, आपको पता लग रहा होगा, तो वो सब चलता रहेगा। बट लेट्स सी हम कैसे करते हैं, क्या अप्रोच कर पाते हैं। आई एम नॉट श्योर हाउ आई विल परफॉर्म। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस होती है, कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करेंगे, वर्किंग भी यहाँ पे करेंगे, आई हैव टू स्विच स्क्रीन्स मल्टीपल टाइम्स, बट आई थिंक देयर मे बी सम एडवांटेजेस आल्सो। तो लेट्स सी हाउ इट गोस एंड हाउ मच लर्निंग यू कैन टेक फ्रॉम दिस। आ जाएंगे ना चार। During my live attempt, I will not talk a lot पानी में क्या in between the sets. But yeah, obviously you can see a lot of things from my workings, how I approach, how I see. And yes, this will all be there, and ignore the noises, ignore the background noise that is coming, that is not in my control, right? So I'm basically sitting in a common area, so that's why the things are like this. So let's start, है ना? Let's start. So this is DLR section 1. You can go to our website, right? This is a paid attempt, but for sure this would be the good one. Let's start. एक ही तरह के राहुल। राहुल एक ही Total 20,000 students from three nations studying in have returned to India by under Operation Ganga. The number of students from Maharashtra, Karnataka. These students study in two cities in Ukraine. Okay. Okay. I will. Maybe this seems good to me. Difficult ज़्यादा नहीं लग रहा. Okay. King Vikramaditya wants to build several places in Ujjain. The capital of the total building work required is 10,000 units for each place. King Vikramaditya wants to, हाँ, wants to complete building all places in exactly 100 and the work completed every day is to be equal. Further, the novice worker, each worker equal to. This also seems a good set to me. ठीक है, इसको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन कहाँ पे है? ठीक है। एक टाइप का चेयर नहीं है ना, वो दूसरी चेयर आ रही है। 10 individuals live in a six on following points are known in each floor. जगह है ना, थोड़ा सा चिपका लो। राहुल इधर हो जाए। राहुल सचिन को चिपका ले, वो बराबर है। How many arrangements? Okay. ठीक है ना। अभी तो नहीं Suppose तो यहाँ पे आई थिंक केसेस है। बन सकते हैं, बट स्टिल सीम्स डूएबल टू मी। ज्यादा क्वेश्चंस भी हैं इनके, एंड मार्क फॉर रिव्यू इसका देख लेते हैं क्या है। बता मैंने कहाँ रखा था। Three of these eight students are from Harvard University, three others from Cornell, while the remaining two from Princeton. Each of these eight students carry passport issued by two countries, one issued by their country of birth and the other issued by another country that has granted. Each of these eight students has primary ठीक है as well बिल्कुल। as secondary passport from one of the following three countries. Oh, too many conditions. Eight conditions, long conditions. So let's see ये हम करेंगे या नहीं. But let me start with this. Total 20,000 students from three Indian states are studying in Ukraine and Russia have returned to India by 31st March under Operation Ganga. The number of students from Maharashtra, Karnataka, Gujarat was okay. Maharashtra, हाँ कोई बात नहीं। Karnataka and Gujarat. कोमल। तो थोड़ा सेट पढ़ लेते हैं पहले। 8,74 4600। अरे यार स्विच नहीं हो रहा। 8,7600 एंड 4600। सारे सीनियर को एक साथ ही लेते हैं ना। These students study in two cities in Ukraine named Kyiv and Donetsk, and one city in Russia, Kyiv, Donetsk. चार चार के तीन सेट अलग से, तीन Kyiv, सेट अलग से तुमको निकालना है। Donetsk. This is for Ukraine, फिर बजाय and there is Son or something in Russia. ठीक है 8 मिनट।
Some of the students have taken a bank loan for funding their studies, while the remaining students are self-financed. Of these, 2,000, 20,000 students, 48. The following table shows the number of students from three Indian schools who study in three different states who funded their studies through a bank loan. अच्छा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में से ये हमारे पास डिटेल ऑलरेडी है। तो 6,000 लोगों ने लिया हुआ है, तो 2,000 लोगों ने नहीं लिया हुआ, 74, तो 2,400 लोगों ने नहीं लिया हुआ। ये मैं नॉन फाइनेंस का बता रहा हूँ, राइट। फाइनेंस का हमारे पास डेटा है। गुजरात का हमारे पास 4,000 है, तो 600 ही हो गया। तो टोटल 5,000 स्टूडेंट्स ने नहीं लिया हुआ एनएफ। ठीक है, आउट ऑफ 48% स्टूडेंट्स इन कीव। तो कीव में 48%, दैट इज 9,600। तो ये 6,400 है, तो 3,200 विल बी इन कीव यहाँ पे। ठीक है, एंड 37% इन डी, तो 7,400। तो 1,000 यहाँ पे आ गया। एंड टेक्निकली यहाँ पे 800 आना चाहिए, वो भी चेक कर लेते हैं। 15%, दैट मीन्स 3,000। ठीक है, 800 यहाँ पे आ गया। ये डेटा हमने पूरा यूज कर लिया है। आउट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात हु हैव रिटर्न टू इंडिया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन कीव टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी इन कीव इज 10 to 13। गुजरात का कीव और ये वाला 10 to 13। ओके, गुजरात का कीव एंड नॉन कीव 10 to 13। यार इसमें स्पीड स्लो हो रही है। मोर ओवर, आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात हु स्टडी इन सोम। अच्छा, सोलंस को गुजरात सोलंस में सारों ने बैंक लोन लिया है, तो गुजरात सोलंस में ये जीरो आ जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटक हु स्टडी इन कीव इज इक्वल। कीव में इक्वल है महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के ये भी इक्वल है ना। तो कीव वाले यहाँ भी इक्वल होंगे, महाराष्ट्र एंड एक्स। तो दिस विल बी 3,200 माइनस 2x। सिस्टम इज वेरी स्लो, बट लेट्स से। गुजरात के आपको बताने थे कीव वाले, तो टोटल कीव वाले कितने, 3,200 माइनस 2x एंड 1,600, तो 4,800 माइनस x। 4,800 माइनस 2x रेशियो नॉन कीव। नॉन कीव वाले कितने हैं गुजरात में, 2,400 प्लस लेट से दिस इज y। तो 2,400 प्लस y, इनका रेशियो 10:13। लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू यूटिलाइज दिस। डेट वाइज भी डेटा दिया हुआ था। ये अच्छा, हमारे पास ये डेटा है ना। तो ये देखो, हमें पता है कि ये 600 है। तो आई कैन से 3,200 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 600, या फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,600, ये बोल सकता हूँ। और यहाँ पे दिस, ये 10 है, ये 13 है, तो इसको 13 से मल्टीप्लाई, इसको 10 से मल्टीप्लाई। वेयर इज माई, सो आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, क्योंकि वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। बट ठीक है, यहाँ पे स्विच करना पड़ रहा है, तो 14,800 इंटू 13, that is 62,400 माइनस 26x इज इक्वल टू 24,000 प्लस 10y। तो बेसिकली ये आ गया 62,400 माइनस 24,000 इज 38,400 इज इक्वल टू 10y प्लस 26x। तो ये आ गया 5y प्लस 13x इज इक्वल टू 19,200। तो यहाँ पे ये आ गया -5y प्लस 10x इज इक्वल टू 13,000। दोनों को ऐड करूंगा तो 23x इज इक्वल टू 32,200। 32,200 बाई 23 आ गया। तो x की वैल्यू 1,400 आ गई। x इज 1,400, तो ये 1,400, 1,400, तो ये आ गया 400। y आ गया 200। ठीक है, y आ गया 200। और क्या करना है, बस यही था सारा इन्फॉर्मेशन। तो नंबर स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ये तो हो गया। अब लेट्स से दिस इज ए। सो ये 1,000 करना है, तो दिस इज 1,000 माइनस ए। एंड लेट्स से दिस, देन दिस विल बी 200, तो ये हो जाएगा मेरा 800 माइनस ए।
और फिर ये हो जाएगा मेरा 1200, नहीं 1400, शिट शिट शिट, ए माइनस 200। यार गलत, नहीं सही है ना, 800 आ रहा है। सारी कंडीशंस मैंने, ए से काट गया, 1000 आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया, 2000 अगर करना है तो ये भी आ गया, 2400 भी आ गया और 600 भी आ गया। लेट्स सी if the number of self-financed students from Maharashtra who study in self-financed self-financed अच्छा नॉन फाइनेंस्ड, हाँ सेल्फ फाइनेंस्ड, फ्रॉम महाराष्ट्र हु स्टडी इन डोमेस्ट डी एंड सी इज इक्वल। महाराष्ट्र में डी एंड एस वाले इक्वल है, तो ये बेसिकली आ जाएगा ए की वैल्यू 500। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका, कर्नाटका हु स्टडी, ए की वैल्यू 500 तो 500 शुड बी, वेट, डी एंड एस इक्वल, डी एंड एस इक्वल है तो ए इज 500 राइट। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम के हु स्टडी इन, अच्छा के हु स्टडी इन डी, 500 यहाँ से और 2000 यहाँ से, तो 2500। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम के हु स्टडी इन डी, अब देखो पूरे नंबर की बात कर रहा है, के हु स्टडी इन डी, के हु स्टडी इन डी 2000, 2000 प्लस ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कर्नाटका हु स्टडी इन एस, कर्नाटका 600, 1600 माइनस ए, तो 2 ए, अरे यार ये क्या हुआ, 1000 माइनस ए, कर्नाटका हु स्टडी इन एस, के हु स्टडी इन डी 2000, 2000 प्लस ए, 1000 माइनस ए, 1600 माइनस ए, व्हाट इज हैपनिंग, 2a माइनस 400 क्यों आ रहा है, अच्छा सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात हु स्टडी इन डॉस, गुजरात हु स्टडी इन डॉस 200। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र हु स्टडी इन डॉस, महाराष्ट्र हु स्टडी 800 माइनस ए एंड 3800 माइनस ए, तो ये हो गया 3800 माइनस ए, ठीक है। तो ए की वैल्यू 100 हो सकती है क्या, ए की वैल्यू 100 नहीं हो सकती, तो ए की वैल्यू 200 मिनिमम होगी, तो मतलब 3600 या 3600 से नीचे आंसर आएगा, तो यही होगा। ये हो गया, दिस सीम्स गुड टू मी, बट एक और भी सेट था यहाँ पे, यार ये थोड़ा डिफिकल्ट आ सकता है, ये करने का मन कर रहा है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ये करते हैं, थोड़ा इजी भी लग रहा है। जे जी के एम आर 4 मेल स्टूडेंट्स वाई जेसिका, अरे यार 4 फीमेल, ठीक है, हु आर अटेंडिंग द एनुअल कॉन्फ्रेंस, 3 ऑफ दीज 8 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हार्वर्ड, 3 अदर आर फ्रॉम कॉर्नल, हार्वर्ड हार्वर्ड हार्वर्ड, कोर कोर कोर, while the remaining two are from Prince, तो PP. Each of these 8 students carry passport issued by 2 countries, one issued by their country of birth and the other, ठीक है। Each of these 8 students has a primary as well as secondary passport, ठीक है, from one of the following 3 countries, US, Canada, UK, ठीक है। No two students from the same university have the same initials. There is no male student out of the given. Too many conditions, but चलो एक बार conditions देखते हैं। Both the male students from Harvard University have their primary, चलो एक बार नोट ही करना पड़ेगा, तो पहले मेल्स का नोट कर लेते हैं। 1 2, जेस, जियोर्ज, केंथ एंड मिल्टन, केंथ एंड मिल्टन, ये मेल आ गया, और जेसिका, जिंजर, कैना मिंदा, कैना एंड मिंदा, ये चारों मेल हैं और ये चारों फीमेल हैं। यहाँ पे उनका प्रिंसटन यूनिवर्सिटी आ गया, यहाँ पे उनका आ गया प्राइमरी एंड सेकेंडरी।
यूएस कनाडा यूके, ठीक है। No two students from the same university have the same initials. No two students from the same university have the same initials. तो सेम इनिशियल्स वाले डिफरेंट होंगे। तो जे जे आ रहा है, जी जी आ रहा है, के आ रहा है, एम आ रहा है। तो सेम इनिशियल डिफरेंट यूनिवर्सिटी। There is no male student out of the given four in the Princeton University. There is no male student out of the given four in the Princeton. तो यहाँ पे या तो हार आएगा या कोरल। हार कोरल, हार कोरल, हार कोरल, दो जगह पी यहीं पे आएगा। There other two universities have at least one male as well as female student. अच्छा, अदर यूनिवर्सिटीज है वन फीमेल एंड वन मेल। तो बस ये पता लग गया मुझे, एच सी पी पी आएगा। एक बार एच फीमेल में, एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा एच सी पी पी और यहाँ पे एच एच सी सी। Both the male students from Harvard University have their primary passport issued by the US. थर्ड पॉइंट एक बार देखते हैं बाद में। Only one male student has his secondary passport issued by Canada, while three female students primary has secondary passport issued by Canada. UK US will always be in pair. UK US. The number of students who have the primary passport issued by the US, Canada, and UK are 332. US, Canada, UK. तो US, Canada, UK 332। US, कनाडा, यूके 323। तो यहाँ पे थ्री टाइम ही आ जाएगा, तो बाकी जगह आएगा कनाडा और यूके। देखते हैं। 323। यार स्क्रीन हैंग हो रही है। 323। सेम इनिशियल्स डिफरेंट यूनिवर्सिटी, ये भी कंसिडर करना है। तो हम कुछ देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। जैसा एंड जिंजर आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी। जैसा एंड जिंजर, जैसी एंड जिंजर। तो यहाँ पे अगर एच सी आ गया तो यहाँ पे भी एच सी कुछ आएगा। दिस इज सेम, दिस इज सेम। सिमिलरली जियोर्ज एंड जेसिका सेम। जियोर्ज ये रहा, एंड जेसिका ये रहा। तो ये ऐसा, तो ये भी ऐसा, तो पी पी तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे लेट से अच्छी अच्छी कुछ भी आ सकता है, वो छोड़ो। जियोर्ज whose primary passport issued by UK। जियोर्ज whose primary passport has been issued by UK। तो ये यूएस आ गया, है ना। तो अब मुझे पता लग गया यूके यहाँ पे सिर्फ एक बचा और यहाँ पे यूएस बचे दो। George whose primary has been issued by UK is not from the जियोर्ज और जैसी की यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। जैसी और जियोर्ज की यूनिवर्सिटी डिफरेंट है। तो ठीक है, अच्छी अच्छी कुछ आएगा, मतलब क्या बोलूँ इसका मैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटी। हाँ वो अंडरस्टूड है।
थर्ड पॉइंट है बोथ द मेल स्टूडेंट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैव देयर प्राइमरी पासपोर्ट इशूड बाय यूएस। ये हार्वर्ड नहीं हो सकता, है ना, ये हार्वर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हार्वर्ड होगा तो यहाँ पे यूएस आएगा। तो ये है मेरा सी, क्रॉस वाला है मेरा सी। अगर ये सी है तो ये हार्वर्ड हो गया, और ये भी हार्वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये मुझे चाहिए नहीं, हार्वर्ड सी, और यहाँ पे हार्वर्ड सी इन एनी ऑर्डर। While a female student from Harvard University has her secondary passport issued by Canada। यहाँ पे जो हार्वर्ड आएगा ये आ गया, तो यहाँ पे कनाडा आ गया। तो कनाडा अभी मेरे पास एक ही रह गया, जो मेरा यहाँ पे कहीं आएगा, और बाकी यहाँ पे मेरा यूएस यूके आएगा। यूएस यूके, यूएस यूके, यूएस यूके। नो अदर मेल स्टूडेंट हैज प्राइमरी पासपोर्ट इशूड बाय यूएस। नो अदर मेल स्टूडेंट, व्हाट द, अच्छा, बोथ द मेल स्टूडेंट्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैव देयर प्राइमरी पासपोर्ट इशूड बाय द यूएस। अच्छा, यूएस, इन दोनों में से एक यूएस आएगा। तो एक यूएस कहीं यहाँ पे आएगा और एक यूएस कहीं यहाँ पे आएगा, 3 कनाडा एंड 1 यूएस। और एक यूएस यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे यूके या यूएस आएगा, यूके या यूएस आएगा। ठीक है, अब इतना तो पता लग गया मुझे, है ना। एक जगह कनाडा आएगा, बाकी जगह देख लेते हैं। हम्म, थोड़ा सा तो गलत कर लिया, बट ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। सेम इनिशियल शुड बी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, ये तो हो गया। ये अच्छी यूके यूएस आएगा, यहाँ पे एक कनाडा आएगा, एक यूके आएगा, तो एक यूएस भी आएगा। अच्छा, 3 कनाडा, ये तो यूएस आएगा ना। तो ये कनाडा आ गया, ये कनाडा आ गया, ये कनाडा आ गया। दो, ये दोनों वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, पता लग रहा है। तो ये तो सॉर्टेड है। अब यहाँ पे देखो, 2 + 3 5 1 6, तो 1 2 6 स्पेसेस पड़ी है। तो हमारा था यूके यूएस, यूके यूएस। ठीक है, लेट्स सी। हार्वर्ड वाला यूके यूएस से था ना। हार्वर्ड एक यूएस आ जाएगा और एक यूके आएगा। तो यूके के सामने एक यूएस यहाँ पे आएगा ना, एक यहाँ पे यूएस आएगा और एक यूके आएगा। तो 3 गए, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, 3 यहाँ पे बच गए। तो यूएस यूके यूके, यूएस यूके यूके, बस यही बनेगा। Consider the following two statements. Or what can be said about all the 3 students from Harvard have their primary passport issued by the same country? Harvard US, Harvard US, Harvard US. Yes, all the 3 students from Harvard has issued by the 3 different countries. Okay, this is challenging. यूके आएगा तो, क्या बोला था उसने, हार्वर्ड वाला, हार्वर्ड का यूएस आएगा। अ, अरे थैंक यू है, हाँ दोनों स्टेटमेंट सही है। If both the female student from Princeton have the same combination of the primary and secondary, Princeton, Canada, Canada, US and sorry, UK and UK, UK and UK. What can be said about the primary passport of the 3 students from Cornell? कॉर्नल, तो एक तो ये यूएस आ गया। ठीक है, यूएस आ गया, कॉर्नल में ऑन कौन है,
प्राइमरी पासपोर्ट वर्क, कॉर्नल का कनाडा, कॉर्नल का यूके, और यहाँ पे तीनों डिफरेंट कंट्रीज. If the two female students have the different combination of primary and secondary, Canada, US, UK, and then this will be UK. Okay. What can be said about the prime secondary passport of three students from Cornell University? UK, US, UK, US. अरे यार, हार्वर्ड वाला यूएस आ गया. लेट्स से इनमें से, अरे इनमें से ऐसे कर लेता हूँ. हार्वर्ड वाला, ये हार्वर्ड है, तो ये यूएस आ गया. ये कॉर्नल है, तो ये यूके आ गया. तो अब देख लेते हैं. कनाडा यूके, कनाडा यूके, तो कॉर्नल पे यूएस आएगा. तो दो यूएस आ जाएंगे और एक यूके. विच टू फेमस स्टूडेंट्स आर फ्रॉम प्रिंसटन? दिस वाज द इजियर. कनाडा मिंडा, कन्ना मिंडा. एक सेट और कर सकते हैं. सकल, यही करता हूँ, थोड़ा पॉइंट्स का है. King Vikramaditya wants to build several places in the Ujjain, the capital of his kingdom. Total building work required is 10,000 units for each palace. Okay, 10,000. King Vikramaditya wants to complete building all places in exactly 100 days, and the work completed every day is to be equal. 100 days equal day. Further, the work on all places is set to begin on official. There are three types of workers available. Novice completes 2 units every day. Skilled 5. एक 2 वाला, एक 5 वाला, एक 10 वाला है. Novice, skilled, and expert. For every place, we define is a 10 defined as the number of novice workers, the number of skilled work. ठीक है. The number of workers of each ability picked up for this work is enough to complete the entire jungle, whatever. The number of, समझ नहीं आया. Expert should be. यार अब मुझे ये भी लग रहा है कि पता नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं, बट ठीक है. ओ ओ ओ ओ 100 दिन में करना है ना, तो पर डे देख लेते हैं. पर डे मुझे 100 यूनिट काम करना है. Let's say this is x, this is y, this is z. So z should be greater than x plus y, right? So basically 2x plus 5y plus 10g should be 100, right? तो एक तो ये हो गया. इसको 10 ले लो, इसको 0 0 ले लो. ठीक है. फिर हो गया, इसको 9 ले लो. तो बेसिकली 2x plus 5y 10 हो जाएगा. तो 10 कैसे बन सकता है? एक तो 2 0, या फिर 0 5, है ना? तो 0 2 5 0 जो भी है, 9 9 के 2 के साथ गए. अब 8 अगर ये हो गया, तो 2x plus 5y इज इक्वल टू 20. 10 वाला केस तो नहीं आएगा. तो ये 2 केस यहाँ पे आ गए, 8 8 के. फिर आ गया 7 की बारी. 2x plus 5y इज इक्वल टू 36 0 4 5 2 0. 10 वाला तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा. 7 वाला एक केस आ जाएगा. बहुत आलस आ रहा है करने में. 2x plus 5y इज इक्वल टू 48 0. 80 मिनिमम केस, आई थिंक वो उससे ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि हमने 6 वाला लिया, तो इतने ही आएंगे. 1 2 3 4 5 6. 6 cases should be there. If the number of skilled worker
is to be more than the sum of the number of novice and expert worker for building the Queen's Palace. And at least one worker of each type is to be employed. Then how many ways can the set of this exist? कौन से वर्कर होने चाहिए? स्किल्ड वर्कर ज्यादा होने चाहिए। पता नहीं पिछला क्वेश्चन सही है या नहीं, बट उस टेंशन में मैं अपना आगे वाला काम खराब नहीं करूंगा, है ना। ये लर्निंग लेनी है, स्किल्ड वर्कर ज्यादा होने चाहिए देन एक्स प्लस जेड, बस ये रखना है। और एक 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 तीनों होना चाहिए, तो अगर एक 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 तीनों होना चाहिए तो ये तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ। तो बेसिकली 2x + 5y + 10 जेड शुड बी 10 + 15, 15 + 2 17। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे 83 चाहिए, बिकॉज वन वन मैंने ऑलरेडी दे दिया। वाई को मैक्सिमम लेता हूँ, तो वाई 16 नहीं ले सकता, बिकॉज 3 नहीं बनेगा। वाई को 15 लेता हूँ। अगर वाई को 15 लेता हूँ तो 75 बन जाएगा। 15 × 5 = 75, 8। तो ये 4 और 0, फिर 10 से कम नहीं बनेगा, तो 15 वाला एक केस बनेगा जिसपे 4 0 ऐड होके, ठीक है। 15 का एक केस बन गया। और फिर 15 के बाद 2x + 10z बनेगा, अगर मैं 14 लेता हूँ तो 14 × 5 = 70। 13 नहीं बनेगा, तो मतलब मुझे पता है 15। फिर मुझे अब 13 का केस लेना पड़ेगा। तो 2x + 10z, 13 × 5 = 65। 15 + 3 = 18। यस। हम्म। तो बेसिकली x + 5z शुड बी 9। राइट, अब ये 9 कैसे बनेगा? तो x + 5z, ये किसका केस लिया था मैंने? 13 का। इज 9। तो बेसिकली 0 9, देन 4 और 1। हाँ, फिर इसको नहीं गिरा सकता, तो ये 9 और ये 4, ये भी दोनों बनेंगे। तो 13 के बनेंगे। फिर 11 का देख लेता हूँ। 2x + 10z, 11 × 5 = 55, और 83 और 55, 13 × 5 = 8, 7 × 5 = 2। तो बेसिकली x + 5g = 14। एंड जेड इज, सो बेसिकली एक्स से स्टार्ट करता हूँ ना, 14 और 0। 14 - 5 9, एंड 1। 5 - 4 एंड 2। 14, तो 11 में 14 तो नहीं आएगा, 10 आ सकता है और 6 आ सकता है, तो 11 में 2 केस आएंगे। उसके बाद शायद नहीं आएगा, बट लेट्स सी। 9, 9 × 5 = 45। तो 83, 45, 38 बनना चाहिए। 13 × 5 = 8, 7 × 4 = 38, और 19 बनेगा x + 5z। तो अब बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब चार, इसको इंक्रीज करो ना, तो इसको डिक्रीज करो। 5 × 14, 1। तो ये भी नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, क्योंकि मैं 9 का केस ले रहा हूँ, 7 वाला हो जाएगा। 9 का केस 1 आ जाएगा। फिर मेरा आएगा 38 के बाद 10 से बढ़ जाएगा तो 48, है ना। 7 वाला केस 48, और यहाँ पे मुझे चाहिए होगा 24। तो x + 5g चाहिए मुझे 24। वुड दैट बी पॉसिबल? 5 का b और ये 4, नॉट पॉसिबल। तो ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ओके, देयर इज अ टाइम। If the king wants to employ no more than 100 experts for the worker। मुझे दोनों ही क्वेश्चन के आंसर गलत लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, अजीब से आ रहे हैं ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा। इफ द किंग वांट्स टू एम्प्लॉय नो मोर देन, ठीक है, एक बार और क्वेश्चंस देखते हैं ना इसके। यार सभी क्वेश्चन अजीब है। इफ द किंग वांट्स टू एम्प्लॉय नो मोर देन 100 एक्सपर्ट वर्कर्स, एक्सपर्ट इज दिस, सो नो मोर देन 100। समझ नहीं आया। इसको कम करूंगा मैं।
इसको लेट से 5 ले लेता हूँ। तो 2x + 5y इज 50, एंड यहाँ पे 10 आएगा। दैट इज नॉट करेक्ट। तो 6 लेता हूँ तो यहाँ पे 40 आएगा। दैट इज 8, नॉट गुड। 7 लेता हूँ, 7 ले सकता हूँ। तो अगर ये 7 लूंगा, 30, तो y 6 और ये 0। सीम्स गुड। 7, 100/7 कितना होता है? 14। 14 शुड बी द आंसर। Suppose at least one skilled and at least one expert worker is to be employed and no novice worker. novice worker नहीं चाहिए। तो सिर्फ मेरा 5y + 10z should be 100, that is y + 2z should be 20, and y और एक आना चाहिए, तो y + 2z is 17, and the total number of workers to be employed on all that place is to be 20. Good, 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 good. So y plus z according to this equation should be 18. No, 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 no. So that 20. नॉविस नहीं था ना। नॉविस नहीं चाहिए, तो 5y + 10z 100 चाहिए, एंड y + z मुझे चाहिए 20। अच्छा, 0 आ रहा है ना? यस, 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 यस। Suppose exactly 10 novice workers and at least one skilled and at least suppose exactly 10 novice workers. Exactly 10 novice workers and at least one skilled have been employed on the military chief class. In how many ways can the सो बेसिकली यहाँ पे ये 10 हो गया, तो ये 20, तो 5y + 10z is equal to 80 and y + 2z is equal to 16. In how many ways can set in for that place to be formed? ये मिनिमम 1 1 भी चाहिए मुझे। 8 0, which will not be there obviously। तो 7 2 6 5 4 3 2 4 6 8 10, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद 2 1 12, ये हो जाएगा। तो 1 से 7 तक हो जाएंगे। Suppose King Vikramaditya wants to build total 10 places subject to the following requirements. On 5 palaces, the number of expert workers employed is टाइम वेस्ट वाला लग रहा है ये क्वेश्चन। ऑन 5 palaces, the number of expert workers is more than the sum of number of expert, ज्यादा होने चाहिए। On the remaining 5 places, the number of novice workers यार ये हमने ना, आई थिंक ये वाला किया हुआ है हमने पीछे, बट वो मैं इरेज कर रहा हूँ तो अब इसमें टाइम लग जाएगा। व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट वर्कर्स एम्प्लॉयड ऑन दीस 10 प्लेसेस, द टोटल नंबर ऑफ व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट वर्कर्स। हाँ, आई थिंक एग्जैक्टली ये किया हुआ है हमने। टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट। तो यहाँ पे 10 ही आ जाएंगे, तो 50 यहाँ से आ गए। तो
बहुत ही रैंडम मार्क कर रहा हूँ इनको, बिकॉज आई डोंट हैव। इनकरेक्ट 21, व्हाट डज दिस मीन? करेक्ट 11, इनकरेक्ट 7। ठीक है, ये क्या आएगा? ठीक है। अरे यार लास्ट के, नहीं अच्छा ये तो ठीक है, बट ये दो गलत हो गए। तो अगर ये दो सही होते हमारे, कुड हैव स्कोर्ड कितने, 8 एक्स्ट्रा मार्क्स, तो 38 आ जाते। बट क्या हुआ इसमें? डू आई हैव समथिंग? एक तो ये बार बार बहुत ही क्लमसी हो गया था ये वाला। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? और सी हैव दिस कैंडी पासपोर्ट इशूड बाय द थ्री। आई थिंक यहाँ पे गलती हुई होगी ना जल्दबाजी में, बिकॉज ये सेट मैंने बहुत ही जल्दी में सोल्व किया था। स्टेटमेंट वन इज डेफिनेटली करेक्ट वाइल स्टेटमेंट टू इज डेफिनेटली इनकरेक्ट। अब देखो बार बार स्टेटमेंट भूल रहा हूँ बिकॉज सामने नहीं है स्टेटमेंट। हार्वर्ड वाले डिफरेंट कंट्रीज में सेकेंडरी, तो हार्वर्ड वाला देखो ये यूएस से है, ये भी यूएस से है, तो तीन डिफरेंट कंट्रीज से नहीं हो सकता, राइट? तो आई थिंक यहाँ पे गलती हुई है ना, जल्दबाजी में, बिकॉज हार्वर्ड यूएस नहीं सेकेंड, अरे यार सेकेंडरी की बात कर रहा है, माय बैड। ठीक है, सेकेंडरी की बात कर रहा है तो एक कनाडा आएगा। हार्वर्ड वाले की बात हो रही है, एक कनाडा एक यूएस, ठीक है, और यहाँ पे हार्वर्ड वाला कनाडा आएगा। सो बेसिकली दो कनाडा एंड वन यूएस। ठीक है, दो कनाडा वन यूएस थे, तो सीम्स लाइक दिस इज माय मिस्टेक, है ना? कुछ भी कह लो, इग्नोरेंस कह लो या लेस अटेंशन कह लो, है ना? बट हाँ, अगर पेन पेपर पे होता है तो थोड़ा सा पर्सनली मुझे ये लगता है कि वहां पे मुझे बार बार स्विच नहीं करना पड़ता, तो मैं स्टेटमेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को याद रखने की जरूरत है, फिर ऑब्जर्व करो, फिर देखो, तो ठीक है वहां पे आई फेल्ट लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्टी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, क्वेश्चन गलत पड़ा होगा। इफ द बोथ द फीमेल स्टूडेंट फ्रॉम प्रिंसटन हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्रिंसटन वाला मैंने देख लिया, कनाडा यूएस, तो यहाँ पे यूके आ जाएगा, नहीं सॉरी, कनाडा यूके, तो यहाँ पे यूएस आ जाएगा, ठीक है। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द प्राइमरी पासपोर्ट ऑफ थ्री स्टूडेंट फ्रॉम कॉर्नल? प्राइमरी पासपोर्ट ऑफ थ्री स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉर्नल, प्राइमरी का पूछ रहा है? कॉर्नल का तो देखो, एक तो कनाडा है प्राइमरी, एक यूके है और एक यूके है, तो दो यूके एक कनाडा। यहाँ पे भी गलती हुई है ना? शुड हैव बीन दो यूके एक कनाडा। ठीक है, बी शुड बी द आंसर आई थिंक। यस, दोनों क्वेश्चंस आई थिंक पढ़ने में गलती हुई है, या पता नहीं क्या गलती हुई है, बिकॉज इतना अच्छा सेट क्रैक किया है तो उसके बाद भी गलती कर रहा हूँ, तो डोंट नो, स्टिल a lot of things to learn from this, but definitely it was a good sectional, right? Surely above the cat level, but I don't know how the marks versus percentile looks for this. But overall I feel कि sectional अच्छा था, है ना? If you are looking for such sectionals then definitely go for this. uh, ठीक है, प्लस आई थिंक लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से सेट्स थे। स्विच नहीं हो रहा, स्विच 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 स्विच, ठीक है। तो देखो फर्स्ट सेट हमने जो किया था, दिस सेट वाज क्रेजी, आई मीन बहुत गलती हो सकती है, फाइनेंस नॉन फाइनेंस का डेटा था, प्लस जब वो बोल रहा है महाराष्ट्र से की वे आर डॉन्स के, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कंसिडर कर लेंगे, या जो वो बना रहे हैं वो कंसिडर कर लेंगे, बट इफ इट इज नॉट मेंशनिंग फाइनेंस और नॉन फाइनेंस तो दोनों फिगर्स ऐड करके कंसिडर करने पड़ेंगे। तो गलती होने के चांसेस यहाँ पे थे, बट यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ गया था नोटबुक पे, तो बहुत सारा कुछ गलत नहीं हुआ। उसके बाद ये वाले सेट में यहाँ पे भी देखना पड़ेगा, वही है, बार बार स्क्रीन का स्विच था तो शायद गलती हो गई यहाँ पे भी, लीव इट। बाकी ठीक था ये सेट, इंटरेस्टिंग था, मतलब इट वाज लाइक ए क्वांट्स क्वेश्चन ओनली,
and should not have taken more time if you just understand what the set wants to say. 11th का अगर मैं देखूं तो 11th मैंने ट्राई नहीं किया, बट 11th में आई पुट अ लॉट ऑफ गेस वर्क, और ये करना भी चाहिए बिकॉज थीटा में ऑब्वियसली करना चाहिए। देख लेते हैं इसका क्या आंसर है। 32, ठीक है, तो बहुत ही डिफरेंट था। 6 वुड ऑल्सो, ठीक है, 2 था, और इसमें 8 था, ठीक है ना। जो बस पहले मैंने यहाँ पे मार्क किया था वो मैंने यही किया था कि कुछ 2 इंटू 2 समथिंग बनेगा, तो उसके बेसिस पे किया था। इसका भी क्या है, 5 है, ठीक है। आई थिंक वो सेट सोल्व करेंगे तो समझ आएगा, बट दिस सेट आई फेल्ट कि यहाँ पे बहुत सारा अरेंजमेंट और ये सब का वर्क है, तो दैट्स व्हाई आई लेफ्ट दिस सेट। नथिंग टू वरी। इसके बाद ये वाला था, ये वाला आई थिंक दिस वाज अ गुड सेट। हाउ वुड आई पुट इट, ये दो क्वेश्चंस आई थिंक maybe from the learning angle या from a student's viewpoint, I would say कि consider these two questions. Let's say अगर आपका set attempt होता या आपका sectional attempt होता, तो you don't have to worry about these mistakes. These mistakes will improve over time, and once you start doing all this, तो you will realize कि ये mistakes avoid हो सकती थी, है ना। तो जब आप ये realize कर लोगे तो then I think things will be smooth for you. तो यहाँ पे हम्म, ये दो क्वेश्चन अगर मैं करेक्ट मानूं तो +4 यहाँ से, +4 यहाँ से, तो 38, आई थिंक 38 इज अ वेरी गुड स्कोर इन दिस सेक्शन। बट ओवरऑल आई थिंक इफ यू आर स्कोरिंग 22, 23, आई मीन एटलीस्ट 2 सेट्स अगर मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज 2 सेट 23, 24 would have been a very very good score, because sectional, this sectional was not on the easier side at all, है ना। अच्छा सेक्शनल था, तो दैट्स इट। उसके बाद ये वाला सेट अच्छा था, मतलब ये सेट का ऐसा था कि यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बिकॉज उसका मेन रीजन यही है कि बहुत सारे केसेस बन रहे थे, है ना। कुछ केसेस आपको दिमाग से देखने थे क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पॉइंटर्स। फॉर एग्जांपल इफ यू सी, मैंने थर्ड पॉइंट को इग्नोर किया था बिकॉज थर्ड पॉइंट वाज टू लेंदी, एंड लास्ट में थर्ड पॉइंट वाज वेरी हेल्पफुल, राइट। सो ऐसा नहीं है कि मैंने थर्ड पॉइंट को पहले मिस कर दिया तो मेरे दिमाग से वो चीज निकल गई, है ना। वो मेरे दिमाग में था कि मुझे थर्ड पॉइंट को मिस किया है, तो आई वुड डेफिनेटली कम बैक टू दिस पॉइंट। तो बाद में आया तो वो चीजें वर्क करी, है ना। बस अब आप ये देख लो, यहाँ से ये लर्निंग ले सकते हो कि एज आई डिड these two questions incorrect, आई डोंट नो हाउ, है ना। मे बी आप जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मुझे ये नहीं करना चाहिए था। बट समटाइम्स इन द एग्जाम आप इतने जल्दबाजी में होते हो कि आप आता हुआ चीज भी या जो आपके सामने कॉपी पे पड़ा है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते, या क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते, तो तब बहुत पेन होता है अगर तब चीजें गलत हो। जस्ट बिकॉज यू सॉल्व द एंटायर सेट, but you did not read the questions in a correct way, in a correct manner, and that's why this happened. So this should not have happened, right? So take this as a learning, and yes, ये हुआ। उसके बाद ठीक है, डिसेंट अटेम्प्ट था। मतलब एक सेट तो आई थिंक 40 मिनट में छूटेगा ही, मतलब मैक्स टू मैक्स आई थिंक 3 सेट्स हो सकते हैं। 4 सेट वुड बी टू मच फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्शनल, अनटिल एंड अनलेस कुछ एक बहुत ही सिटर सेट हो, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा था मुझे, कोई सिटर सेट नहीं दिखा, है ना। जैसे सिमकेट 1 में देखोगे या लास्ट ईयर कैट में देखोगे तो सिटर सेट थे, बट यहाँ पे कोई सिटर सेट नहीं था, तो मेक सेंस टू लीव एटलीस्ट 1 और 2 सेट्स हियर। बट वहां पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप कोई सेट स्टार्ट कर रहे हो तो यू शुड नॉट लीव दैट सेट इन बिटवीन, राइट। फिर उसको पूरा क्रैक करो अच्छे से। प्लस 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 प्लस, यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए सभी को अगर कुछ ऐसी गलती हो रही है ऐसे स्टेटमेंट्स में। ये पता नहीं यार कैसे गलती हो गई, मतलब सेकेंडरी पासपोर्ट्स को या तो मैंने प्राइमरी पासपोर्ट पढ़ लिया स्क्रीन स्विच करते टाइम। अगर प्राइमरी पासपोर्ट देखूं, अभी भी मुझे क्वेश्चन याद नहीं है। हार्वर्ड के प्राइमरी पासपोर्ट देखता हूँ तो हार्वर्ड का प्राइमरी यूएस, हार्वर्ड का यूएस, हार्वर्ड का यूएस, तो डेफिनेटली आई थिंक आई लुक्ड ओवर द प्राइमरी पासपोर्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कर दिया, है ना। तो वही है, थोड़ा सा पढ़ने में गलती हुआ है या पता नहीं कुछ भी है। और 18 देखो, बट दिस इज अ रियल पेन, मतलब मैंने एफर्ट डाला, गलती हुई है तो मुझे रिग्रेट हो रहा है, एज ए बेंटर भी मुझे वो बहुत रिग्रेट हो रहा है, एंड दैट्स वाई मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे भी बार बार मॉक्स और कैट देना चाहिए ताकि मैं वो रिग्रेट, वो पेन को फील कर पाऊँ।
अदरवाइज कोई और होगा तो बोलेगा ही कि यार ये स्टूपिड मिस्टेक है. दिस इज नॉट अ स्टूपिड मिस्टेक, राइट? व्हेन यू डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू रियलाइज कि ये सब होता है, दिस इज नॉर्मल, है ना. यहाँ पे भी क्या किया मैंने, प्राइमरी पूछा तो शायद सेकेंडरी पे ध्यान दिया, लेट से. कॉर्नल का सेकेंडरी यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे यूएस है, एंड यहाँ पे यूएस यूके में कोई है. वन थिंग टू नोट, जब मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा था तो मैंने ये जो केस वाला था ये केस को फिक्स नहीं किया था, तो आई थिंक वहां पे भी कहीं कंफ्यूजन हो रही थी. ये वाले केस को मैंने बहुत लेट आके फिक्स किया है. आई शुड हैव डन दिस वे अर्लियर, है ना. तो यहाँ पे मैंने फिक्स नहीं किया था, तो शायद यहाँ पे भी गलती हुई है. बट दैट्स इट, है ना. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज ड्रॉप ए कमेंट, एंड इफ यू वांट मी टू अटेम्प्ट मोर सेक्शनल, मोर मॉक्स, आई विल बी ऑल देयर टू डू दैट ऑल्सो. अब पूरा full length mock would be little difficult for me because I'm out of practice, and it's not like I don't want to give it, but abhi it feels to be a long stretch. But closer to cat maybe I can appear for it also. And ठीक है, वहां पे भी मजा आएगा, VARC DLR क्वांट्स अलग 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 करते हुए. बट specifically for my course, for my booster course, I'm more focused towards quants and DLR. So we will talk about that at length, and obviously we will talk about VRC also, right? So if you're looking to prepare with us, if you're looking to boost your score in the last 4 or 5 months, then yes, do consider joining us. Thank you.